میرا نام رضیہ ہے۔ میں نے مولوی صاحب کے کہنے پر ابھی سپارہ پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ مولوی صاحب کا ہاتھ میری کمر پر دھیرے دھیرے گردش کرنے لگا۔ میں ایک دم سہم گئی تھی، میری سانس جیسے سینے میں اٹک گئی تھی۔ میں نے ایک نظر مولوی صاحب کو دیکھا تو وہ بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے تھے۔ میں کچھ کھسک کر پیچھے بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نے اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ میں نے اپنے سپارے کی جانب دیکھا اور سبق دہرایا۔ مجھے لگا جیسے میرے پورے وجود میں ہزاروں چیٹیاں رینگ رہی ہوں۔ میں نے پھر مولوی صاحب کی طرف دیکھا تو ان کی نظریں مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ شاید میں سب بچیوں میں بڑی تھی۔ میری عمر صرف ابھی 13 سال تھی اور میں پہلے سپارے پر تھی۔ میرے والد کا کام ہی کچھ ایسا تھا، ہر 6 مہینے بعد ان کا ٹرانسفر ہو جاتا تھا۔ میرے اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ جس محلے میں اب ہم رہ رہے تھے وہاں مولوی صاحب نے ایک مدرسہ کھول رکھا تھا۔ بہت سے بچے اس مدرسے میں رہتے تھے لیکن زیادہ تر لڑکے ہی رہتے تھے۔ ہمارا گھر اس مدرسے کے برابر میں ہی تھا۔ امی نے مجھے بھی وہیں پر کلام پاک پڑھنے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا۔ پہلے تو مولوی صاحب نے بڑی شرافت دکھائی تھی، لیکن جب سے میں نے وہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھا تھا اس کے بعد سے مولوی صاحب کی عجیب و غریب حرکتیں میرے ساتھ شروع ہو چکی تھیں۔ کبھی سبق دیتے ہوئے وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتے، کبھی میرے رخسار چھونے لگتے، کبھی مجھے اپنے پاس بٹھا کر میری کمر کو سہلانے لگتے۔ میں ان حرکتوں سے بے حد پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میری والدہ نے مجھے کبھی بھی گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی کبھی یہ کہا کہ کوئی تمہیں ایسے چھوئے تو چلانا شروع کر دینا یا سختی سے پیش آنا۔ یہ ہر بات میری ماں کو بتانی چاہیے تھی۔ میرے خیال سے جس معاشرے میں اب ہم رہ رہے ہیں، اپنی ماؤں کو بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان باتوں کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، لیکن میری والدہ کی تو سوچ ہی بڑی عجیب تھی۔ میں ایسی باتوں سے بہت جلد گھبرا جاتی تھی۔ میں نے امی سے بھی کوئی ذکر نہیں کیا تھا، بس ایک دن تنگ آ کر گھر جا کر یہ کہہ دیا کہ مجھے مولوی صاحب سے نہیں پڑھنا، وہ میرے لیے کسی ملانی کا انتظام کریں، کیونکہ جو کچھ میں نے کچھ دن پہلے چھت پر ہوتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل مولوی صاحب کو دیکھتے ہی سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگتا تھا۔ لیکن میری بات سن کر امی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور میرا کان کھینچ کر مولوی صاحب کے پاس لے گئی۔ کہنے لگی اس لڑکی نے مجھے پریشان کر کے رکھا ہے، ایک تو اس کے دماغ میں جلدی سے کچھ بیٹھتا نہیں ہے، اوپر سے اس کے نخرے، کہہ رہی ہے مولوی صاحب سے نہیں پڑھوں گی۔ مولوی صاحب نے مجھے غصے سے دیکھا تو میں نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ میری ماں نے تو مجھے مولوی صاحب کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مولوی صاحب کی ساری داڑھی سفید تھی۔ مولوی صاحب 60 یا 65 سال سے کم کے نہیں تھے۔ ظاہر ہے میری ماں کیوں ان پر شک کرتی۔ وہ کہنے لگے بے فکر ہو جاؤ بہن جی، نافرمان بچوں کو تو میں 2 گھنٹے زیادہ بٹھا کر خاص توجہ سے پڑھاتا ہوں، بس چند مہینے میں تیر کی طرح ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کی تیز آواز پر میرا دل دہل اٹھا تھا۔ پھر امی سے کہنے لگے دیکھیے بہن جی، میں ذرا سخت مزاج قسم کا استاد ہوں اور بنا ڈنڈا کھائے کبھی کسی کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن کیا ہے کہ یہاں بچوں کے جسم پر تھپڑ کا نشان ماں باپ کو دکھ جائے تو ماں باپ ہم مولویوں کی کلاس لینے آ پہنچتے ہیں کہ بچوں کو ہاتھ بھی کیسے لگایا۔ میری والدہ نے تو یہ سن کر مولوی صاحب کو کھلی چھوٹ دے دی تھی۔ کہنے لگی میری طرف سے جو مرضی کریں اس کے ساتھ، میں کبھی شکایت لے کر نہیں آؤں گی، بس میری بچی اسی سال میں کلام پاک پڑھ لے۔ وہ کہنے لگے کہ بے فکر ہو جائیں، آپ نے کہہ دیا، بس اب آپ کی بچی میری خاص نظر میں رہے گی، اسے میں اپنے پاس بٹھا کر پڑھاؤں گا۔ اس بات پر میری والدہ بڑی خوشی خوشی مجھے وہاں چھوڑ کر چلی آئیں۔ میں ڈری سہمی سامنے بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب نے سخت لہجے میں مجھ سے کہا ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو، تمہیں تو میں پوچھتا ہوں ابھی گھر جا کر میری شکایتیں لگاتی ہو۔ یہ سن کر تو میری جان نکلی تھی۔ میں نے نام میں سر ہلایا، میں نے کہا میں یہیں بیٹھ کر پڑھوں گی۔ میری بات پر تو انہوں نے مجھے ایسے لتاڑا کہ میں کانپ کر رہ گئی تھی۔ ڈر کے مارے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں ان کے پاس بیٹھی وہ میرے قریب آ کر کان کے قریب سرگوشی سے بولے آئندہ اگر میری کوئی بھی بات گھر جا کر بتائی تو تم شاید جانتی نہیں ہو میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ تمہاری ماں مجھے کچھ بھی نہیں کہے گی، الٹا تمہیں ہی مارے گی۔ دیکھ لیا تم نے آج تمہاری ماں نے تمہاری ایک نہ سنی اور میری بات مان لی۔
मौलवी साहब की बात सच्ची थी। फिर मैं थी भी कम उम्र, इसलिए ये बात अपने पहलू से बांध ली कि अम्मी से कुछ नहीं कहना, वरना मौलवी साहब न जाने मेरे साथ क्या बुरा सलूक करेंगे। बदले में मेरी अम्मी भी मुझे थप्पड़ ही मारेंगी। उस दिन के बाद से तो मौलवी साहब की गुस्ताखियाँ और बढ़ती जा रही थीं। उनकी बेबाकियाँ तो हद से ज़्यादा हो गई थीं। जब तक मैं मौलवी साहब के पास बैठी रहती, उनकी बेहुदा जुमलेबाजियाँ मुझे शर्म से पसीने से शराबोर करती थीं। उनकी बढ़ती गुस्ताखियाँ मुझे और भी ज़्यादा बदहवास करती थीं। वो मुझे किसी जहरीली मुस्कुराहट से देखते, जैसे मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हों। मैं घर आती और आते ही कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती, लेकिन अम्मी से कुछ न कहती, क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसा कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे याद आने लगा कि चंद दिन पहले मैंने छत पर क्या देखा था। उस रात को जो हुआ था वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। गर्मियों की रातें हम लोग छत पर सोकर गुजारते थे। छत पर लाइन से सबकी चारपाइयाँ बिछी हुई थीं और स्टैंड फैन लगाकर हम सो जाते थे। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। बाकी मेरे दो भाई मुझसे काफ़ी छोटे थे। एक 4 साल का था और दूसरा 8 साल। मैं रात को अपनी चारपाई पर गहरी नींद सो रही थी, जब मुझे किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त कौन हो सकता था? मैंने उठकर पूरी छत को देखा, लेकिन सब ही बेख्तियार सो रहे थे। मुझे वो आवाज़ बराबर वाली छत पर से आ रही थी, जहाँ मौलवी साहब का मदरसा था। छत पर बस एक ही कमरा था, जिसकी खिड़की खुली हुई थी और एक मध्यम सी रोशनी उस कमरे में जल रही थी। सिसकने की आवाज़ भी उसी कमरे से आ रही थी। मेरा दिल धक से रह गया। भला इस वक्त छत के कमरे में कौन यूं दबी दबी सिसकियों से रो रहा था, क्योंकि मदरसे के रिहायशी कमरे तो नीचे के पोर्शन में बने हुए थे। छत पर तो कोई भी नहीं जाता था। मुझे तो यही गुमान हुआ कि शायद किसी भूत प्रेत का चक्कर ना हो। इसी सोच ने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया था। मेरी अम्मी की चरपाई मेरे बिल्कुल बराबर में थी। मैंने अम्मी का हाथ जोर से पकड़ लिया और आयतल कुर्सी को पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो सिसकियों की आवाज़ मुझे मुसलसल आ रही थी। मैंने ज़ोर से अपनी आंखें भींच ली और सोने की कोशिश करने लगी। अगले रोज़ जब मैं मदरसे में गई तो मौलवी साहब बादाम मिला दूध नोश फरमा रहे थे। कहने लगे, रात भर वजीफा करता रहा हूँ, बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। एक तो ये जिन्नात के बच्चे भी बेहद परेशान करते हैं। इस वक्त बहुत सी औरतें अपने बच्चों को नाजरे के लिए छोड़ने आई थीं। मौलाना की बात सुनकर बड़ी मुतासिर नजर आ रही थी। एक औरत कहने लगी, तभी तो मौलवी साहब आपकी छत पर किसी की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। ये सुनकर मैं भी चौंकी थी। इसका मतलब वो आवाज़ सिर्फ मुझे ही नहीं आई थी। मौलवी साहब कहने लगे, जन्नात के बच्चे की थी। मैंने वजीफा शुरू किया कि मुझे तंग करने पहुंच गए। मैंने उन्हें बांध दिया, बस फिर क्या, उनकी सिसकियों ने मेरे साथ साथ आप लोगों को भी परेशान कर दिया। बात सिर्फ यहीं तक होती तो अफसोस ना होता, लेकिन कम वक्त जाते जाते मेरे एक शागिर्द को मार पीट कर गए हैं। बेचारा आज बुखार में पड़ा है। मौलवी साहब की बात सुनकर वहां मौजूद खवातीन खौफजदा हो गई थीं। मौलवी साहब कहने लगे, आप लोग परेशान न हों। मैंने समझा दिया है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर किसी को रात को रोने सिसकने या मदद के लिए पुकारने की आवाज़ आए, तो उस पर ज़्यादा तवज्जो मत देना, वरना वही होगा जो मेरे शागिर्द के साथ हुआ, क्योंकि वो भी रोने की आवाज़ सुनकर कमरे में आ गया था। ये सुनकर तो सभी औरतें घबरा गई थीं। डर तो मैं भी गई थी, क्योंकि सिसकियों की आवाज़ तो मैंने भी सुनी थी। वो खवातीन बाहर चली गईं। रात को फिर से मुझे वो सिसकियों की आवाज़ें आने लगीं। इस बार तो मेरी हिम्मत भी न हुई कि आंखें भी खोलूं। मैंने चारों कुल पड़े और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरी आंखों ने देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं खौफजदा सी होकर रह गई थी। अगले रोज़ जब मैं मदरसे गई तो सबक पढ़ने के दौरान मैंने उसी लड़के को देखा। उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। मैं उसे देखकर दंग सी रह गई थी। मौलवी साहब मुसलसल उसी लड़के को घूर रहे थे। वो डरा सहमा मेरे बराबर में बैठ गया और कलाम पाक याद करने लगा। उसकी आवाज़ यूं थी जैसे रो रहा हो। मुझे उस पर तरस आने लगा था। उसकी उम्र 7 से 8 साल से ज़्यादा न थी, और जो कुछ मैंने उसके साथ होते देखा था, मेरे तो होश उड़ गए थे। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उंगलियों की छाप अभी उसके रुखसार पर नजर आ रही थी। वो सिपारा पड़ रहा था और अपने आंसू पोंछ रहा था। उसके बाद उसकी कमीज हटी तो मैं देखकर सकपका कर रह गई। उसके बाजू पर किसी ने बुरी तरह दांत गाड़े थे। मैं तो कांप कर रह गई थी।
कुछ देर के लिए मौलवी साहब उठकर बाहर गए, क्योंकि मोहल्ले के एक साहब ने उन्हें काफ़ी कीमती तोहफे भेजे थे। जैसे ही मौलवी साहब बाहर गए तो मैंने उस बच्चे से कहा, कल रात तुम छत पर क्या करने गए थे, जब तुम्हें पता था कि मौलवी साहब जिन्नों को काबू में करते हैं। मेरी बात सुनकर उस बच्चे की रंगत उड़ी थी। दाएं बाएं देखने लगा कि मेरी बात किसी ने सुनी तो नहीं। फिर मुझसे धीमे लहजे में कहने लगा, ये मौलवी झूठ बोलता है, बुड्ढा कहीं का, कोई जिन्नात नहीं है ऊपर। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। मैंने कहा, फिर तुम ऊपर क्या कर रहे थे, और तुम्हारे चेहरे पर और बाजू पर ये निशान कैसे हैं? मेरी बात सुनकर एक सिसकारी उसने बड़े कर्ब से भरी थी। कहने लगा, आज खुद देख लेना। ये कहकर वो मेरे पास से उठकर चला गया। मैं उसकी बात पर सोच में पड़ गई, क्योंकि रात को मैंने इसे छत के कमरे से निकलकर सीढ़ियों से उतरते देखा था, और उस वक्त वो बुरी तरह से रो रहा था। पहले तो मैं समझी कि शायद जिन्नात का बच्चा है, लेकिन जब उसे मदरसे में देखा तो समझी कि शायद ये जिन्नात के बच्चे को देखने गया था, इसलिए जिन्नात ने इसकी ये हालत की थी। लेकिन अब इसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। शायद बात कुछ और थी। इस रात मैं सोई नहीं थी, अपनी चारपाई पर लेटी रही, लेकिन मेरी नज़रें सामने मदरसे की छत पर ही टिकी हुई थीं। कुछ देर बाद जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, एक दिल दहला देने वाला मंजर था। मौलवी साहब एक 10 साल के बच्चे को अपने साथ छत पर ले गए और उसे बुरी तरह से घूरते हुए खामोश रहने का इशारा कर रहे थे। वो बच्चा हाथ जोड़े बिना आवाज़ निकाले उनकी मिन्नत समाजत कर रहा था, लेकिन वो उस लड़के को कमरे में ले गए। उसके बाद इस बच्चे की दबी हुई सिसकियों की आवाज़ें आने लगीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मौलवी साहब इस बच्चे के साथ ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो रो रहा है, सिसक रहा है। 2-3 घंटे ऐसे ही आवाज़ आती रही। उसके बाद जब वो दरवाज़ा खुला, वो बच्चा बुरी तरह से रो रहा था और ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, और मौलवी साहब अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, चेहरे से बड़े खुश लग रहे थे। मैं सोच में पड़ गई थी कि वो क्यों रात को बच्चों को कमरे में ले जाकर मारते हैं, और लोगों से ये क्यों कहते हैं कि जिन्नात के बच्चे रोते हैं और वो वजीफ़ा करते हैं। बहरहाल मुझे ये देखकर दुख भी हुआ और मौलवी साहब के झूठ बोलने की वजह भी समझ नहीं आ रही थी। तीसरी रात मैं सोच चुकी थी कि आज मैं छत पर जाकर देखूंगी कि आखिर उनकी छत पर होता क्या है और वो बच्चों को क्यों मारते हैं। जैसे ही रात गहरी हुई, मौलवी साहब फिर से एक बच्चे को छत पर ले आए और कमरे में ले गए। मैं अपनी चारपाई से उठी और धीरे से कदम उठाती हुई मौलवी साहब की छत की दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। वो दीवार ज़्यादा ऊंची न थी, मैं आसानी से उनकी छत पर जा सकती थी। मैं धीरे से दीवार की मुंडेर पर बैठी और दूसरी जानिब उतर गई। अब मुझे इस बच्चे की सिसकियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। मैं धीरे से चलती हुई कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। अभी भी मध्यम सी रोशनी कमरे में रोशन हुई थी। जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरी तो रूह लरस गई थी। मैंने फौरन से अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख दबाई थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा रूह फना कर देने वाला मंजर मैंने 12 साल की उम्र में पहली बार देखा था कि मैं कांप कर रह गई थी। मैंने अपने कदम पीछे के लिए उठाए थे, लेकिन एकदम से मैं एक पत्थर से टकरा गई थी। मेरे मुंह से बेइख्तियार चीख निकली थी। चारों तरफ खामोशी थी, इसलिए मेरी चीख फिजा में गूंजी थी। मैंने पलट कर भी नहीं देखा था और दीवार फलांग कर अपनी चारपाई पर लेट गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे सीना फटकर मेरा दिल बाहर निकल जाएगा। अगले 2 रोज तक मैं बुखार में तपती रही। मैं आंखें बंद करती तो वही मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता। वो एक 10 साल का बच्चा था जो ऊपर छत पर लेटा था। उसके दोनों हाथ पीछे को बांधे गए थे। उसके मुंह से रुमाल फंसा हुआ था, और जो शर्मनाक हरकत उसके साथ की जा रही थी, उसे बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज भी नहीं थे। मैं दोबारा उस मौलवी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी जो हवस का भूखा था, लेकिन मेरी माँ की नज़रों में वो बहुत नेक था। मेरे बार बार मना करने पर भी वो मुझे उस मौलवी साहब के पास छोड़कर आने लगी। अब उसकी हरकतें और नज़रें मुझ पर दूसरे अंदाज से उठ रही थीं। एक बार तो उस शख्स ने हद ही कर दी। मुझसे धीरे से कहने लगा, जाओ कमरे में जाकर सबक याद करो। मैंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जो कुछ मैं उसे करते देख चुकी थी, मुझे उससे वैसे भी खौफ महसूस होता था। मेरे इनकार करने पर उसने बड़े गुस्से से मेरी तरफ देखा था। फिर उसने वहां आने वाले नाजरे के बच्चों को ये कहकर छुट्टी दे दी कि वो जिन्नात वाला वजीफा करने वाला है, और जो लड़के उसके पास वहीं मदरसे में रहते थे,
उन सबको कहा कि वो अपने अपने कमरों में चले जाएं और अपने कान बंद कर लें। ये सब सुनकर मेरी जान निकली थी। मैंने भी अपना सिपारा हाथ में लिया और जाने के लिए खड़ी हो गई, लेकिन अगले ही लम्हे वो बुड्ढा मौलवी बड़ी फुर्ती से उठा और मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उस वक्त उसकी आंखें गुस्से और न जाने किस जज्बे के तहत सुर्ख थीं। कहने लगा, मेरी टोक लगाने का तुझे बड़ा शौक है ना? खिड़की से छुपकर देखती है कि मैं क्या कर रहा हूँ? यही सुनकर तो मेरी जान निकल गई। तो क्या वो मौलवी मुझे देख चुका था? मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे अपने घर जाना है। उस वक्त तक सब बच्चे जा चुके थे। वहां पर रहने वाले लड़के भी डरे सहमे ऊपर चले गए। उस बुड्ढे मौलवी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मेरी आवाज को दबाने की कोशिश करने लगा। फिर मुझे नीचे बने कमरे में ले गया, जहां एक चरपाई रखी थी। उसने मुझे चरपाई पर जोर से फेंका और दरवाजा बंद कर दिया। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। वो बुड्ढा कहने को तो 60-65 साल का था, लेकिन उसमें ताकत बहुत ज्यादा थी, या शायद मैं उम्र में कम थी। चाहकर भी मैं अपना बचाव उससे नहीं कर सकती थी। मेरे सर पर बंधा हिजाब बड़ी बेदर्दी से उतार कर फेंका था। मैं चिल्लाने लगी तो मेरे मुंह पर बड़ी जोर से थप्पड़ मारने लगा। फिर अपने कंधे पर से रुमाल उतार कर मेरे हाथ पीछे को बांधने लगा। मैं मुसलसल चिल्लाए जा रही थी, लेकिन मेरी पुकार सुनने वाला कोई न था। दिन के वक्त में भी मेरी चीख पुकार पर मेरी मदद को कोई न पहुंचा। शायद सबको यही लग रहा था कि मौलवी साहब फिर से जिन्नात पकड़ रहे हैं। इस शख्स ने मेरे मुंह से भी रुमाल ठूंस दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं एक 60-65 साल के मौलवी की हवस का निशाना बन चुकी थी। मौत से पहले मर जाना किसे कहते हैं, ये शायद उस वक्त मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। मुझे लगा अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी और हुए हैं। मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि हिल भी सकूं। मेरी आंखों से आंसू टूट टूट कर निकल रहे थे। मैं वहीं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मेरी माँ मेरे पास बैठी रो रही थी और वो खबीस बुड्ढा भी वहीं खड़ा था। कहने लगा, आप अपनी बेटी का ख्याल रखा करो बहन। रात को छत से छलांग कर जन्नातों को मार खाता देखेगी तो यही हाल होगा। मैंने तो बहुत चाहा कि वो इसे नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन मुझे भी उन्होंने धक्का देकर बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो जन्नात उसके साथ ये सब कुछ करके जा चुके थे। मेरा जी चाहा मैं उस शख्स का मुंह नोच लूं। मेरी माँ मुझे सहारा देकर घर ले गई। मेरे वालिद का ट्रांसफर कहीं और हो गया। हम एक दूसरे शहर चले गए। मैं बिल्कुल गुमसुम सी हो चुकी थी। मेरी माँ मुझसे बात भी करती तो मैं जवाब नहीं देती थी। मगर 1 महीने बाद मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरी माँ जब मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी माँ तो वहां दहाड़े मार मार कर रोने लगी। कहने लगी, ये सब कैसे हो गया? मैंने नफरत से अपनी माँ की तरफ देखा। मैंने कहा, आपको मुझ पर जरा भी एतबार नहीं था अम्मी, उस खबीस मौलवी पर था। आप उसकी बात को सच्चा और मेरी बात को झूठा समझती थी। उस दिन मुझे जिन्नात ने नहीं, उस बुड्ढे ने अपनी हवस का निशाना बनाया था, लेकिन आपको कुछ भी नजर नहीं आया। अरे माँ तो अपनी बेटी की आंखों से ही पढ़ लेती है, जान जाती है कि बेटी को क्या चीज परेशान कर रही है। आपने तो उस मौलवी की बात को सच समझा। मेरी माँ की आंखें उस वक्त खुली जब मैं मुकम्मल बर्बाद हो चुकी थी। मैं जिस कदर कम उम्र थी, मेरा अबॉर्शन करवाना नामुमकिन था। मेरी जान भी जा सकती थी। मेरी माँ ने पूरे 9 महीने का अरसा मुझे घर के बाहर नहीं निकलने दिया, लेकिन मैं बेहद कमजोर हो चुकी थी, इसलिए एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। मेरी माँ ने उसे इसी शहर में दफना दिया था। जिस कच्चे घर में हम रहते थे, मेरी बाप को मेरी माँ ने हवा भी न लगने दी। कुछ वो काम के सिलसिले में घर पर ही कम रहते थे। मैंने दोबारा से तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। जब मैंने पुलिस की जॉब की ख्वाहिश जाहिर की, मेरी माँ ने साफ इनकार किया, लेकिन मेरी भी जिद थी कि मैं पुलिस की ही जॉब करूंगी। अब्बू ने कुछ नहीं कहा। मैंने भी जी जान लगा दी। पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन की। अपनी मेहनत और ईमानदारी से मैं बहुत जल्द अपने सीनियर्स की नज़र में अपना मकाम बना चुकी थी। लेकिन जब भी मेरे पास एक ऐसे मौलवी का केस आता जो कुरान पाक की तालीम के बहाने बच्चे बच्चियों के साथ गलत काम करता था, मैं उसका रिमांड खुद लेती थी। उसे मारते वक्त मेरे सामने उसी बुड्ढे का चेहरा नजर आता था। फिर तो मेरा डंडा एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकता था।
ایک بار ایک لڑکی کے ساتھ ایک مولانا نے زیادتی کی جس کی وجہ سے وہ پریگننٹ ہو چکی تھی۔ میں نے اس مولوی کو اچھی طرح سے دھن کر رکھ دیا تھا۔ اس بچی کی ماں بہت رو رہی تھی۔ میں اسے تسلی دینے لگی کہ جب اس لڑکی کا دادا روتا ہوا وہاں پہنچا۔ 80 سال کے بڈھے کو دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ 15 سال بعد میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس 80 سال کے بڈھے کو دیکھ کر میری اذیت جیسے پھر سے نئی ہو گئی تھی۔ وہ وہی بڈھا شخص تھا جس نے مجھے برباد کیا تھا اور آج مجھ سے اپنی پوتی کے ساتھ ہوئی زیادتی کے لیے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو پورا یقین ہے کہ اس مولوی نے ہی آپ کی پوتی کو برباد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی جنات نے اسے ہوس کا نشانہ بنایا ہو۔ میری بات سن کر وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا مولانا صاحب، جو بویا ہے وہ کاٹنا تو پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی پوتی کو برباد کرنے والا بھی آپ کا کوئی شاگرد ہو جسے آپ چھت پر لے کر جاتے تھے۔ میری بات سن کر وہ اپنے دل کو پکڑ کر وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں میں آج بھی اس شخص کے لیے صرف نفرت تھی۔ آپ سبھی پیرنٹس سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جب بھی تعلیم کے لیے بھیجیں تو ان کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں ضرور بتائیں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔